Hello students of class 11th. Today's in my video lecture we explain some basic concept of chemistry chapter first and some basic points such as molecular masses. So molecular masses, students already you know that is mass of molecules. Molecule is monoatomics, diatomics, triatomics and polyatomics. So students already you know that molecule that is monoatomics, molecule that is monoatomic. Okay, monoatomic molecules that is inert such as argon, okay, helium, neon, argon, that is monoatomics. तो स्टूडेंट्स जो ये गैसेस होते हैं already gases you know that in the form of molecules, but inert gases always in the form of atom form because they are obtained stability by the region of octave. तो ये जो ये गैसेस होते हैं वो एटम मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं और मॉलिक्यूल वो आपके जो है मोनोएटॉमिक्स होते हैं. तभी say that inert gases are monoatomics and after it diatomic molecule contain two atoms such as O2, H2, N2, Cl2, that is diatomic molecules. Triatomic molecules triatomic molecules means molecule contain three atoms such as ozone, O3 that is a triatomic molecules. Three atoms of oxygen combined form O3, ozones. Tetraatomic, octatomic such as P4, octatomic such as S8. तो इस तरह से molecules are monoatomic, tri and the basis of combination of atoms molecule are di, tri, tetra, penta, octa and so on. So students already you know about molecules that is homoatomic and heteroatomic. Homoatomic molecules such as O2, En2, same kind atom that is homoatomics, and heteroatomic molecules such as HCl, one hydrogen and chlorine, two atom combination of two atom, that is a formation of molecules that is heteroatomic. Different atom combined form a molecule that is heteroatomic molecules. HCl, H2SO4 that is heteroatomics. So on the basis of number of atom molecules are mono, di, tri, tetra, octa and so on, and on the basis of nature of atom molecules are homoatomic and heteroatomic. ओके, होमोएटॉमिक में जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया सेम काइंड ऑफ एटम, एंड हेटेरोएटॉमिक में डिफरेंट काइंड एटम्स. तो स्टूडेंट्स आपके एनसीईआरटी बुक में जो कुछ पैरा इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, थोड़ा उसको हम लोग चेक कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. molecules mass is the sum of atomic masses of the elements present in a molecules. तो स्टूडेंट जो molecular masses होता है that is mass of molecules means number of atom present in molecules. तो mass of molecule फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको जो है molecules का नेचर जानना होगा कि which type of molecules that is monoatomic, diatomic. जिससे सपोज कीजिए कि एक आंसर एक क्वेश्चन पुटअप किया गया कि फाइंड आउट द मालिकुलर मासेस ऑफ ओजोन. तो मालिकुलर मासेस ऑफ ओजोन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली आपको मालूम होना चाहिए
कि ओजोन दैट इज़ ट्राई एटॉमिक, 3 एटॉमिक, तब इस पे आप जो है इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले आपको जो है मॉलिक्यूल्स का नेचर आपको पता होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड सो ऑन। It is obtained by multiplying the atomic mass of each element by the number of its atom and adding together. For example, molecular masses of methane. Molecular masses of methane CH4, that is heteroatomic molecules. The mass of carbon 12 plus mass of hydrogen 1. Number of hydrogen atom 4 multiply 4 equal to 12 plus 4 equal to 16. The molecular masses of methane that is 16. तो molecular mass फाइंड आउट करने के लिए पर एटम मास आपको वैल्यू पुटअप करना होगा और नंबर ऑफ एटम्स का मास में मल्टीप्लाई करना होगा एंड लास्ट में एडिशन प्रॉपर्टी से ऐड करके आप टोटल मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ मेथेन्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो एनसीईआरटी में जो आप देख रहे हैं, जो पॉइंट आपको यहाँ शो किया गया है कि मेथेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन 12.011 एंड प्लस 4 हाइड्रोजन यहाँ आपको दिखाया गया है एंड मास ऑफ 1 हाइड्रोजन 1.008। सो टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेथेन 16.0043 और हमने अभी आपको जो है 16 वैल्यू शो किया था। तो मॉलिक्यूलर मास के 2 वैल्यू होते हैं, एक वैल्यू होता है जो है कैलकुलेटेड मास, एक होता है आपका एक्चुअल मास। तो एक्चुअल मास ऑफ मेथेन 16 एंड कैलकुलेटेड मास ऑफ मेथेन दैट इज 16.043। अब स्टूडेंट्स एक पॉइंट यहाँ एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि 0.043 हम मेथेन के मास में शो नहीं करते हैं, तो व्हाट हैपेंस ऑफ दिस मास। तो इस मास का क्या होता है जो 0.034 आपको यहाँ शो किया गया है और मेथेन का जो मास हम लोग 16 शो करते हैं, तो यह 0.043 जो मास है, यह मास व्हाट हैपेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जैसे भी हमने आपको बताया कि आपको ये मास 2 मिलते हैं, एक आपका मास मिलता है कैलकुलेटेड मास जिससे हम लोग जो है एमसी दिखाते हैं, एक होता है आपका जो है एक्चुअल मास जिससे हम लोग जो है एमएस दिखाते हैं। तो इसमें होता है क्या कि एटम से जब कंबाइन करता है तो एटम में कम्बिनेशन करने पर उसमें एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी जब रिलीज होता है तो उसके टोटल मास में डिफेक्ट आती है, जिसे हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट अभी आप लोग स्टूडेंट्स अपर क्लास में पढ़ेंगे कि मास डिफेक्ट होता है क्या। तो मास डिफेक्ट को हम लोग डेल्टा एम से शो करते हैं। ओके, तो डेल्टा एम इक्वल टू एम सी माइनस एम ए। मास डिफेक्ट ये होता है कैलकुलेटेड मास और माइनस जो एक्चुअल मास। तो कैलकुलेटेड मास में से एक्चुअल मास को माइनस करते हैं तो हमको डेल्टा एम मास डिफेक्ट मिलता है। अब ये जो मास डिफेक्ट है जो आपको फाइंड आउट हुआ है, जैसे अभी आपने क्या देखा कि मेथेन का जो कैलकुलेटेड मास एनसीईआरटी में शो किया गया 16.043। ओके, और हमने आपको जो है एक्चुअल मास कितना बताया था 16। तो इसमें डिफेक्ट कितना मिला आपको जो है 0.43। तो ये ये जो है 0.043। तो ये जो है कि 0.043 जो मास डिफेक्ट डेल्टा एम आपको मिला। और यह मास क्या होता है, व्हाट हैपेंस ऑफ दिस मास, जबकि आप स्टूडेंट जानते हैं कि मास जो है ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो यह मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होगा और ये एनर्जी जो है यह न्यूक्लियस के बाइंडिंग में यूज होता है, जिससे आप कहते हैं कि न्यूक्लियर बाइंडिंग। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग, न्यूक्लियस में ऑल प्लस ही होता है, न्यूक्लियर में ओनली प्रोटॉन्स होता है, न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं। तो न्यूक्लियस की बाइंडिंग कैसी होती है, जबकि न्यूक्लियस कंटेन ओनली पॉजिटिव स्फीयर।
तो न्यूक्लियस में ओनली पॉजिटिव पार्ट होता है, न्यूक्लियस में नेगेटिव पार्ट होता नहीं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन्स है दैट इज़ पॉजिटिव, न्यूट्रॉन दैट इज़ न्यूट्रल। तो हाउ न्यूक्लियस आर बॉन्डेड, न्यूक्लियस की बॉन्डिंग कैसे होती है? तो न्यूक्लियस की बॉन्डिंग के लिए ये मास डिफेक्ट जो डेल्टा एम है ये भी इफेक्टिव होता है। और एक न्यूक्लियस की बॉन्डिंग के लिए अभी आप लोग पढ़ेंगे मेसान बताया जाएगा, पाई मेसान प्लस पाई मेसान माइनस पाई मेसान, जो कि ट्रांजिशन होता है वह इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में। तो ऑलरेडी आपको अपर क्लास में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ हम आपको दिखा देते हैं कि जो ये मास डिफेक्ट डेल्टा एम मिला, ये डेल्टा एम आइंस्टीन इक्वेशन डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो ये जो मास डिफेक्ट आपको अभी मिला, अब इसकी जो एनर्जी चेंज हुई, जो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यह मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। डेल्टा ई जो है आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, और ये डेल्टा एम अभी आपने देखा, क्या देखा 0.043, और सी आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसे आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इमेजिन कर सकते हैं कि 0.043 × 3 × 10⁸ इसका वैल्यू कितना होगा। और यह वैल्यू जो होगा वह जो आइंस्टीन एनर्जी वो ऑब्टेन होगी, और यह एनर्जी जो है ये एनर्जी रिलीज नहीं होती है। यह एनर्जी जो है यह न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियर बाइंडिंग में हेल्प करता है। तो इस तरह से यहाँ कुछ पॉइंट और आपको हम थोड़ा बता देते हैं स्पेशली नॉलेज के लिए, कि जैसे आप ये जानते हैं कि सन का जो एनर्जी है, तो सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन। और न्यूक्लियस के फ्यूजन में अभी हमने आपको दिखाया कि एक वन मीथेन मालिक्यूल्स के फ्यूजन में कितना एलाट ऑफ एनर्जी जनरेट हो रही है। और सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है। जैसे अभी आप यहाँ देखेंगे कि हाइड्रोजन का मास जो 1.008 U आपको शो किया जाएगा एनसीईआरटी में, जबकि हाइड्रोजन का मास आप क्या लिखते हैं, ओनली 1 दिखाते हैं। तो 0.008 जो है यह जो U है, यूनिट्स है, ये एनर्जी कहाँ चली जाती है? तो एनर्जी कहीं जाती नहीं। यह एनर्जी जो है आइंस्टीन इक्वेशन डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर में ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वही एनर्जी रिलीज होती है सन से। और सन का जो मास है ये हाइड्रोजन एंड हीलियम का मास है। तो इसमें 4 हाइड्रोजन एटम, सन में होता है क्या कि 4 हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन से हीलियम एटम बनता है। और उसके बाद यह जो है हाइड्रोजन का जो है ये 0.008 जो वैल्यू है यह एनर्जी में रिलीज होकर ये हमारे प्लेनेट को जो है मिलता है। इस तरह से स्टूडेंट्स अभी आपने मैंने क्या देखा कि सिमिलरली अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से 2 × 1.00 प्लस 16.00 18.02 ये आपको जो है वाटर का मॉलिक्यूलर मास ऑप्शन होता है। लेकिन स्पेशली न्यूमेरिकल वैल्यू में आप 18 शो करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन वाटर 18। 0.02 का वैल्यू क्या है? वह 0.02 का वैल्यू हमने अभी आपको जो एक्सप्लेन किया। हाँ, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में आपने मॉलिक्यूलर मास देखा। मॉलिक्यूलर मास में हमने थोड़ा सा आपको जो है स्टार पॉइंट कम्पिटिटिव व्यू से आपको बताया कि मॉलिक्यूलर मास अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो स्पेशली ऑलरेडी फाइंड आउट हो जाता है, लेकिन उसका जो पॉइंट डेसिमल वैल्यू होता है क्या होता है उसके में आइंस्टीन इक्वेशन से हमने कंफर्म किया। सो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को जो हमने अभी आपको मास डिफेक्ट और न्यूक्लियर फ्यूजन और इससे रिलेटेड जो पॉइंट हमने दिया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस वीडियो को अच्छी तरह आप जो है वॉच एंड राइट्स। सो थैंक्स।